مدینہ کی وہ خاموش فضا جہاں نبی کریم کا روضہ ہے، وہی گلیاں جہاں کبھی وہی کا نور اترتا تھا، لیکن ان گلیوں میں اب ایک طوفان اٹھنے والا تھا، کیونکہ خلافت کے نام پر ظلم کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی معاویہ بن ابو سفیان کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا یزید زبردستی تخت پر بیٹھ گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ سب اسلامی رہنما اس کی حکومت کو مانیں، خاص طور پر نواسۂ رسول امام حسین، کیونکہ حسین اگر خاموشی سے یزید کی بیعت کر لیتے تو ساری امت آنکھیں بند کر کے یزید کو خلیفہ مان لیتی۔ مگر حسین جانتے تھے یہ صرف سیاست نہیں تھی، یہ بات اسلام کے مستقبل کی تھی۔ یزید جیسا شخص جو شراب پیتا تھا، ناچ گانے کی محفلیں سجاتا تھا، جسے نہ دنیا کی پرواہ تھی نہ سنت کی، اگر وہ خلیفہ کہلایا تو کل کو دنیا سمجھتی ہے کہ اسلام یہی ہے۔ اسی لیے 27 رجب کو جب یزید نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے صاف الفاظ میں کہا، مجھ جیسا شخص اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی معمولی انکار نہیں تھا، یہ ایک اعلان جنگ تھا۔ ایک تنہا مرد مگر حق کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کربلا کی چنگاری جل چکی تھی، اب وقت تھا اس آگ کے دہکنے کا جو صرف باطل کو جلا ڈالے گی۔ رات کے پچھلے پہر مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جہاں رسول اللہ کا گھر تھا، جہاں امام حسین پلے بڑھے تھے، جہاں ہر دیوار پر، ہر در و دیوار میں ان کے نانا کی خوشبو تھی۔ مگر اب اس شہر میں وہ محفوظ نہیں تھے، کیونکہ یزید نے فیصلہ کر لیا تھا، یا حسین بیعت کریں یا شہید کر دیے جائیں۔ 28 رجب 60 ہجری وہ لمحہ آ گیا۔ امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو تیار کیا، خواتین، بچے اور کچھ جان نثار ساتھی۔ مدینہ کی زمین کو الوداع کہا اور رات کی تاریخ میں خاموشی سے نکل گئے۔ یہ ہجرت کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں تھی، یہ سفر تھا حق کی حفاظت کا۔ امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے رخصت ہوتے وقت فرمایا، میں فساد یا ظلم کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تاکہ اپنے نانا کی امت کو عدل و انصاف کی طرف بلاؤں۔ پھر طویل سفر کے بعد 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے، وہی مکہ جہاں ان کے نانا نے توحید کا پرچم بلند کیا تھا، وہی خانہ کعبہ جو نبیوں کی امامت ہے۔ اسی کے سائے میں امام حسین نے کچھ وقت کے لیے پناہ لی، لیکن مکہ بھی اب محفوظ نہ تھا۔ یزید کے جاسوس وہاں بھی پہنچ چکے تھے۔ امام جانتے تھے یہ راستہ صرف ہجرت کا نہیں، یہ راستہ شہادت کی طرف لے جا رہا ہے۔ مکہ میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دور کہیں سے پیغام آنے لگے، کوفہ سے۔ کوفہ وہ شہر جہاں کبھی مولا علی نے خلافت کا مرکز بنایا تھا، جہاں کے لوگ اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے تھے۔ اور اب جب انہیں خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو گویا امت کی امید جاگ اٹھی۔ رمضان کی 10 تاریخ کو کوفہ سے 1-2 نہیں، سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ہر خط میں ایک ہی صدا تھی، اے فرزند رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ کی قیادت چاہیے، آئیے اور ہمیں ظلم سے نجات دلائیے۔ یہ خطوط صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پکار تھی جو دلوں سے نکلی تھی۔ امام حسین نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ پہلے خود جانے کی بجائے اپنے قریبی نیک بہادر چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کریں۔ مسلم بن عقیل گئے، لوگوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ تقریباً 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ منظر سن کر امام حسین نے مکہ میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر وقت بدلا۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ابن زیاد کو بھیجا گیا، ایک ظالم، چلاک اور یزید کا وفادار شخص۔ ابن زیاد نے دھمکیوں، قتل اور خوف کی فضا پھیلائی۔ لوگ پلٹنے لگے، جو بیعت کی تھی وہ بھاگنے لگے، اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ آخر کار کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ آنے والے ہانی بن عروہ کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خبر جب امام حسین تک پہنچی تو چہرے پر دکھ کا سمندر امڑ آیا، لیکن ارادہ وہی تھا، میں ظالم کے سامنے جھکوں گا نہیں، چاہے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کربلا کا کارواں تیار ہونا شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ حج کا مہینہ اور لاکھوں حاجی بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، لیکن انہی دنوں میں ایک ایسا قافلہ بیت اللہ کو چھوڑ کر ایک اور سفر پر روانہ ہو رہا تھا، ایک ایسا سفر جو صرف جسمانی نہیں، روحانی جہاد بننے والا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب حاجی منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مگر اسی دن امام حسین نے مکہ کو خاموشی سے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن نے مکہ میں ہی قتل کی سازش تیار کر لی تھی، اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر میں خون بہے۔ یہ احترام کعبہ تھا جو انہیں ہجرت پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس راہ پر جا رہے ہیں وہاں واپسی نہیں ہے، لیکن دل میں سکون تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سفر صرف موت کا نہیں،
हक की फतह का सफर था। गर्मी, बयाबान, बच्चों का साथ, औरतों की थकन और ऊपर से ये खबर के मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं। कुछ साथियों ने रोका, कहा अब रुक जाएं कि आगे खतरा है, लेकिन इमाम हुसैन ने वो तारीखी जुमला कहा, हम उस अंजाम की तरफ जा रहे हैं जो अल्लाह को मंजूर है। 2 मुहर्रम उल एहराम और 61 हिजरी को ये काफिला करबला के मैदान में उतरा। एक खुश्क, सुनसान, बेआबो गया जमीन, ना कोई साया ना पानी, बस तपता हुआ सहरा और उफक पर दुश्मन की फौजें। ये वही जमीन थी जिसे करबो बला कहा जाता है, यानी दुख, आजमाइश और मुसीबतों की वादी। मगर इमाम हुसैन के चेहरे पर फिर भी सुकून था, क्योंकि इन्हें यकीन था कि यही जमीन है जहां मेरा खून गिरेगा और इस्लाम को जिंदगी मिलेगी। करबला का मैदान, तपता सूरज, रेत ऐसी गर्म के हाथ लगा दो तो जल जाए, और इधर इमाम हुसैन का काफिला जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े सब मौजूद थे। और फिर वो जुल्म शुरू हुआ। यजीद की फौज जिसकी क़यादत कर रहा था उमर बिन साद, इसी उमर का बाप साद बिन अबी वकास नबी के सहाबी थे, मगर बेटा आज यजीद के कदमों में था। ताकत, माल और गवर्नरी की लालच में सिपाही यजीदी ने आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से इमाम हुसैन के खैमों को मुहासरे में ले लिया। फिर 7 मुहर्रम उल एहराम को यजीदी फौज ने सबसे बड़ा जुल्म किया। फुरात का पानी बंद कर दिया गया। जी हाँ, जिस दरिया का पानी दरिंदे भी पी सकते थे, जहाँ दुश्मन की फौजें खुलेआम घोड़े नहला रही थीं, वहाँ अहले बैत के खैमों में एक कतरा पानी भी ना था। गर्मी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। रेतले तूफानों में बच्चों की हिचकियां सुनाई दे रही थीं। अली असगर जैसा छोटा बच्चा प्यास से बिलख रहा था। सकीना अपनी जुबान से बार बार पूछ रही थी, बाबा क्या पानी आ जाएगा? इमाम हुसैन के भाई अब्बास अलमदार ने बारहा दरिया की तरफ जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन इमाम ने हर बार फरमाया, पहले सब्र, शहादत का वक़्त करीब है। ये प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं थी, यह इम्तिहान था सब्र, यकीन और वफादारी का। और इस प्यास में भी किसी ने सदाए शिकवा ना की, किसी ने अल्लाह से गिला ना किया। बस एक ही सदा थी, ए रब, जो तेरी रजा है वही हमें कबूल है। ये पानी बंद करना सिर्फ जंगी हरबा नहीं था, ये इंसानियत का जनाजा था। जब इमाम हुसैन को 18,000 से ज्यादा खतूत कूफा से भेजे गए तो हर खत में यही वादा था, आइए हम आपके साथ हैं, हम यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं। कल तक जो लब्बैक या हुसैन कह रहे थे वो सब खामोश हो गए। दरवाजे बंद कर लिए गए, रास्ते रोक दिए गए। कूफा के लोग खौफ, दुनियादारी और कमजोर ईमान की वजह से हक के साथ खड़े ना हो सके। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने फरमाया, लोगों तुमने मुझे बुलाया लेकिन अब तुम ही मुझे कत्ल करने पर तुले हो। क्या यही तुम्हारी वफादारी है? 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफिला करबला में उतरा और फिर 10 मुहर्रम को खून की वो दास्तान लिखी गई जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन ये 8 दिन यानी पहले मुहर्रम से 9वें मुहर्रम तक ये वो दिन थे जहाँ प्यास थी, खैमों में सिसकियाँ थीं और आंखों में सवाल थे और दिलों में यकीन था। इन 8 दिनों में इमाम हुसैन ने कभी तलवार नहीं उठाई, बल्कि हर दिन बातचीत, सुलह और हक की दलील के लिए गुजारा। यजीद के लश्कर से कहा कि अगर तुम्हें मेरी बैत चाहिए तो मैं इनकार करता हूँ, लेकिन अगर सुलह चाहते हो तो मुझे 3 रास्तों में से एक रास्ता दे दो। वापस मदीना चला जाऊं, किसी सरहद पर चला जाऊं, खुद यजीद से बिलमुशाफा बात कर लूं। मगर जवाब आया, ना वापसी मुमकिन है, ना सुलह, या बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन बार बार पानी की फराहमी की अपील करते रहे, खसूसन बच्चों के लिए, लेकिन फुरात का पानी था तो चंद कदम दूर, मगर यजीदी फौज का पहरा था। बच्चों के होंठों पर छाले पड़ चुके थे। माएँ अपनी चादरें चूस चूस कर बच्चों के होंठ गीले करती थीं। इमाम हुसैन के भाई अब्बास ने कई बार दरिया की तरफ जाने की इजाजत मांगी, मगर इमाम ने फरमाया, अभी नहीं, वक़्त आएगा। शाम का वक़्त था, दुश्मन की फौज करीब आ चुकी थी, कत्ल का ऐलान हो चुका था। लेकिन यजीदी सिपा सलार ने हमले से पहले इमाम से कहा, क्या तुम्हें एक रात की मोहलत चाहिए? इमाम हुसैन ने एक अजीम मुतालबा किया, हाँ मुझे एक रात दे दो, मैं अपने रब के हजूर नमाज, तलावत और दुआ करना चाहता हूँ। दुश्मन फौज जो सिर्फ खून बहाना चाहती थी, वो भी इमाम का तकवा, अजमत के सामने झुक गई और एक रात
रات की मोहलत दे दी गई। इमाम ने खैमे खैमे जाकर सब साथियों को कहा, कल सुबह कोई ना बचेगा, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन हर जुबान से एक ही आवाज आई, हुसैन आपके बगैर जीना हमें गवारा नहीं, हम सब मर जाएंगे लेकिन आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खैमों में चिराग जला दिए गए। कोई वजू कर रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई अपने बच्चों को गले लगाकर रोता था। ये वो रात थी जो सिर्फ इमाम हुसैन के काफिले की नहीं बल्कि तारीख की सबसे मुकद्दस रात बन गई। फजर का वक़्त था और यौम आशूरा 10 मुहर्रम। करबला की सरजमीन पर स्याह आसमान तने हुए थे। हवा में खौफ, रेत में प्यास और खैमों में खामोशी थी। इमाम हुसैन ने वजू किया और नमाज फजर अदा की, फिर अपने साथियों को जमा किया और एक आखिरी खुतबा दिया। लोगों, देखो मैं कौन हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं फातिमा का बेटा और अली का लख्ते जिगर हूँ। क्या मैंने तुम्हारी बहनों की चादरें छीनी? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया? तो फिर तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मगर जवाब में सिर्फ खामोश तलवारें थीं जो हुसैन के खून की प्यासी हो चुकी थीं। इमाम ने मैदान में सफ बंदी की, सिर्फ 72 जान निसार, और दूसरी तरफ यजीद की हजारों फौजें। पहले नौजवान शहीद हुए, अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा जो नबी अकरम से सबसे ज्यादा मुशाबिह था, मैदान में गए और सीने में बर्छी मारकर शहीद कर दिया गया। हजरत कासिम इमाम हसन के बेटे छोटे थे मगर जज्बा शहादत से भरे हुए, शहादत पाकर इमाम के कदमों में जा गिरे। जब खैमों में पानी का नामो निशान ना रहा, इमाम हुसैन ने अपने नन्हे बेटे को हाथों पर उठाया और दुश्मन की तरफ ले जाकर फरमाया, इसे तो पानी दे दो, ये तो कुछ बोल भी नहीं सकता। मगर जवाब में हरमला का तीर जो सीधा गले पर लगा और अली असगर तड़प कर इमाम की बाहों में दम तोड़ गए। वो जवान जो लश्कर का बाजू था, पानी लेने दरिया की तरफ गए, मगर जब पानी भरा तो याद आया सकीना प्यासी है, पहले उसे पिलाऊंगा। मगर वापसी में बाजू काट दिए गए, अलम गिर गया और अब्बास दरिया के किनारे शहीद हो गए। इमाम ने जब अब्बास का लाशा देखा तो फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई है। अब खैमों के बाहर सिर्फ इमाम हुसैन बाकी बचे थे, जिनके सामने इनका पूरा काफिला लेटा पड़ा था। लाशें बिखरी हुई, खैमों से सिसकियां आ रही थीं और सामने हजारों तलवारें, नेज़े, तीर, और इमाम हुसैन ने मैदान में आखिरी बार कहा, क्या कोई है जो मुझे नबी के नवासे के तौर पर पहचाने? क्या कोई है जो मुझे इंसाफ दे? मगर कोई ना आया। बस यजीदियों की बारिश की तरह बरसती हुई तलवारें थीं। दुश्मनों ने इमाम को चारों तरफ से घेर लिया, तलवारें चलाईं, तीर मारे और आखिर में शिमर मलऊन ने इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस को तने मुबारक से जुदा कर दिया और वो सर करबला की मट्टी पर नहीं रखा गया बल्कि बीबी ज़ैनब के हाथों में आ गया। खून बह गया, लाशें रोन दी गईं, खैमे जला दिए गए, लेकिन करबला जिंदा हो गया, क्योंकि हुसैन कत्ल नहीं हुए बल्कि बातिल को हमेशा के लिए रुसवा कर गए। यजीदी फौज चली गई, लेकिन औरतें, बच्चे और कैदी तन्हा, बेसहारा और जख्मी दिल लिए खड़े थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अली का पोता और हुसैन का बेटा था, शदीद बीमार थे, लेकिन अब काफिले की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। बीबी ज़ैनब जिन्होंने भाइयों, भतीजों और बेटों को शहीद होते देखा, अब क़ियादत, हौसला और सब्र की मिसाल बन चुकी थी। जब जालिम फौज चली गई तो बनु असद कबीला करबला आया जो करीब के इलाकों में रहता था, और इन्होंने मैदान में बिखरी हुई लाशों को पहचान कर बड़ी अकीदत और एहतियात से दफन किया। इमाम हुसैन को अली अकबर के कदमों की तरफ दफन किया गया। हजरत अब्बास को दरिया के किनारे अलग मुकाम पर दफन किया गया। यजीदियों ने कैदियों को रस्सियों से बांधा, बच्चों के गले में तोक और हाथों में जंजीरें, और शोहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद करके कूफा की तरफ रवाना किया। कूफा के बाद काफिला दिमश्क ले जाया गया, जहाँ यजीद तख्त पर बैठा था, हंसी के साथ इस्तकबाल कर रहा था, और सामने इमाम हुसैन का सरे मुबारक रखा गया। लेकिन वहाँ बीबी ज़ैनब ने एक ऐसा खिताब किया कि यजीद का तख्त कांप गया। ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें शिकस्त दे दी? नहीं, हमने अपनी जानें देकर हक को बचा लिया और तू रहती दुनिया तक लानत का निशान बन गया। कई दिनों बाद जब काफिला आजाद हुआ तो इन्होंने कहा, हम पहले करबला वापस जाना चाहते हैं। जब काफिला वापस करबला पहुंचा तो वही मैदान, वही कब्रें, वही खामोशी। हर कब्र से एक दास्ताने वफा निकल रही थी। करबला सिर्फ तलवारों का मैदान नहीं था, ये ज़मीर, शऊर और सच्चाई की बुलंद तरीन चोटी थी, जहाँ हुसैन ने बताया कि सर कट जाए तो कट जाए, लेकिन बातिल के सामने झुकना नामुमकिन है। आज के दिन अमली तौर पर हमें क्या करना है? सिर्फ रोना नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। सिर्फ
صرف ماتم نہیں بلکہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، صرف یاد نہیں بلکہ کردار کو اپنانا ہے۔ امام حسین کا مشن تھا امت کی اصلاح اور عدل کی واپسی، باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اور یہ مشن ہم سب کے لیے ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ تو ہماری ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔